Good morning students. Welcome back to our English lecture. I hope you all are fit and fine. Now students, in this lecture we will start unit number 2. In that lesson number 3, the chapter's name is The Barefoot Magician of Hoki. Barefoot Magician of Hoki. In this chapter we will discuss about the one person who is known as the Barefoot Magician of the Hoki. Why that person is called, why that person is given such title, उस person को ऐसा क्या था उसमें जो उसको ये title दिया गया है. ठीक है, in this lecture we will study that. Now students, you know the hockey, which country's national game is hockey? Yes, it is India's national game, that is hockey. Okay students, so before going to start the chapter, let us go through the meanings. Okay, our first word is authority. Authority means the power to give order, the rights to give order. Now I have the authority, I have the power to give you the order regarding your subject. Okay, so authority. Second word is imprisonment. Imprisonment means locked up in a prison. जेल में लॉक करना, उसको imprisonment बोलते हैं. ठीक है. Now sepoy. Third word is sepoy. Sepoy means an Indian soldier under British order. इंडियन आर्मी में जो सोल्जर ज्वाइन हुए हैं उस सोल्जर को बोलते हैं sepoy. Okay. Next word is regimental. Now students, what is regimental? This is new word for you. Regimental is relating to an regiment. Relating to an regiment means a large group of soldiers. एक पूरा group of soldiers किसको फॉलो करता है? जैसे कि आप सब स्टूडेंट्स किसको फॉलो करते हो? आप टीचर्स जो ऑर्डर आपको दे वो आपको फॉलो करना होता है. वैसे ही ये जो सोल्जर्स है, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को हेड कौन करता है? कर्नल. ठीक है, वो रिलेटिंग, वो रेजिमेंटल बोलते हैं उसको. ठीक है ना. चलो नेक्स्ट वर्ड इज फिफ्थ, फीट. नेक्स्ट वर्ड इज फीट मींस अचीवमेंट. तुमने क्या अचीव किया. ठीक है. सिक्स्थ वर्ड इज डोमिनेट मींस कंट्रोल. डोमिनेट मींस कंट्रोल. सेवंथ इज पीक. पीक मींस द topmost point or the highest point. Eighth is discarded means removed. Discarded means removed. Okay. Ninth word is well hid. Well hid means a team which is better occupied. A team which is better occupied means जिस टीम के पास proper उसके instruments हैं. Okay. 10th is anecdote. Anecdote means story. 11th is pertaining. Pertaining means connected. Pertaining means connected. Pertaining means connected. Okay. Last word is floodlights. Floodlights. Students, आपने स्पोर्ट्स ग्रुप का शेड्यूल लिखा है स्पोर्ट्स का. ठीक है. वहां पे पूरा लाइट्स अरेंजमेंट कैसे होता है, जैसे कि स्पोर्ट्स का हर एक कोना आपको दिखे तो उसको फ्लड लाइट्स बोलते हैं. लाइट्स यूज्ड टू लाइट अप द स्पोर्ट्स ग्राउंड. क्लियर स्टूडेंट्स? दिस वर द डिफिकल्ट वर्ड्स इन दिस चैप्टर. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. The barefoot magician of hockey. Barefoot means जिसके पैर में शूज सैंडल्स नहीं होते हैं. ठीक है. बैरफुट मैजिशियन ऑफ हॉकी. जनरली वी प्ले हॉकी. हम कोई भी गेम खेलते हैं तो वी वेयर शूज. ओके. तो एक ऐसा मैजिशियन है, मैजिशियन मीन्स जादूगर, जिसके पैर में फुट सैंडल्स शूज नहीं है. देन ऑल्सो वी कॉल देम अ मैजिशियन ऑफ द हॉकी. ओके. Who is that man and how he earns such a great title? Okay, let's see the story of him. Okay, moving on. चलो students, have you ever played a sport barefoot?
कोई भी स्पोर्ट आप खेले हो तो बिना शूज के आप खेले हो? नो, आई तो नेवर। What did it feel like? कैसा फील होता है जब आपके पैर में शूज नहीं होते और कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हो? Did you know that throughout most of the history humans have gone barefoot? क्या आपको पता है हमारी पास्ट हिस्ट्री है वहाँ पे कोई मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो जो इंसान थे, ओके, उन्होंने कभी शूज या सैंडल्स के नेम्स भी सुने होंगे। दे रिमेन बैरफुट, ऐसे ही वो किधर उनको जाना हो वैसे ही ट्रैवल करते थे, ठीक है। बैरफुट इज द टर्म, नाउ व्हाट इज बैरफुट? इज द टर्म दैट डिस्क्राइबिंग गोइंग विदाउट एनी फुटवेयर। पैर में कोई भी शूज सैंडल्स नहीं होना, ऐसे ही जाना, ठीक है। इन द एनिमल किंगडम ओनली ह्यूमंस वेयर फुटवेयर। In animals kingdom, who wear the footwear? Only the humans were supposed to wear the footwear. Footwear is relatively new invention. Footwear जब invent हुआ तो उससे पहले किसी को पता नहीं था। जैसे कि आज से आप जाओ तो 25, 30 to 40 years back किसी को पता नहीं था कि फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, but now can we imagine a day, a hour without an mobile phone? No, we can't imagine. Similarly, बहुत सा हजार साल पहले फुटवेयर नहीं थे. They used to play barefootedly. Okay, so this were at that time this was a very new invention. Okay, when it comes to the history, पास्ट में आप देखो तो ये एक न्यू इन्वेंशन है, हमारे लिए ये कॉमन थिंग है. In 1776 BCE, at very first Olympic game, athletes did not wear shoes. In 776, before the Jesus Christ was born, उसके टाइम, उससे पहले जब फर्स्ट ओलंपिक गेम्स हुए थे तो एथलेट्स में जो गेम्स हुए थे उसमें किसी ने शूज़ नहीं पहने थे. ऐसे ही एथलेट ओलंपिक गेम प्ले हुआ था. Shoes by themselves signals authority. Generally, shoes क्या सिग्नल करते हैं? अथॉरिटी का. Grown ups always wear shoes. Grown ups means मैं और आप जो भी ग्रो हो रहे हैं. I am a grown up child. ओके, तो आप मुझे कभी भी घर से बाहर निकलो तो आप मुझे बिना शूज़ या सैंडल्स के कभी भी आप मुझे देख पाओगे? नो, इट्स नॉट पॉसिबल. ओनली इवन यू ऑल्सो, ठीक है. बट यू कैन सी द चिल्ड्रन वॉक एंड प्ले बैरफुट, इंडिकेटिंग व्हाट अ केयर फ्री टाइम चाइल्डहुड इज. अगर हम बच्चे हैं, इफ़ वी आर स्मॉल किड्स, तो हमें कोई बोलेगा नहीं. वी डोंट हैव अ इनफ सेंस कि हमें इधर खेलना है तो वी मस्ट वेयर अ शूज़ और सैंडल्स. आप देखना जनरली छोटे किड्स, उनको कुछ पड़ी नहीं होती, वो ऐसे ही खेलने चले जाते हैं. उनको आपको फोर्स करना पड़ता है कि बेटा सैंडल पहनो, शूज़ पहनो, पैर खराब हो जाएंगे, ठीक है. तो चाइल्डहुड टाइम्स कितना केयरलेस, मतलब केयर फ्री था कि हमें कुछ समझना नहीं है, जस्ट वी हैव टू डू इट. Whereas now wearing good shoes is considered as a sign of authority. जनरली आप किसी टीचर को देखोगे या तो कहीं ऑफिस में आप जा रहे हो तो यू विल वेयर अ गुड अट्रैक्टिव शूज़, ठीक है, ताकि आपकी उस पर आपकी पर्सनैलिटी जज होती है. सो इट इज़ अ साइन ऑफ द अथॉरिटी. इट इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ड्रेसिंग अप. ड्रेसिंग अप का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्या? वेयरिंग शूज़. Especially for adults who go to the office meetings or formal functions. सपोज आप सोचो अभी कोई ऑफिस है या तो कोई मीटिंग है, ठीक है, उसमें कोई पर्सन आ रहा है, वो बिना शूज़ के आ रहा है, तो हाउ डज इट फील? ओके, कैसा लगेगा? ठीक है. इफ ग्रोन अप्स गो barefoot, it symbolizes imprisonment and powerlessness. Okay, they could be poor people, prisoners or slaves. अगर कोई बिना चप्पल के आता है तो we will consider कि imprisonment, मतलब जेल में रखा था उसको, या उसके पास पैसे नहीं है खरीदने के लिए, he is poor, या तो prisoner है या तो फिर slave है, इसलिए उसके पास शूज़ सैंडल नहीं है, कहीं से भाग के आ रहा है.
तो वो सब हमें थिंकिंग फास्ट आएगी। ओके, बट ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हमारी हिस्ट्री थी पास्ट टाइम में। बट नाउ वी विल स्टडी अबाउट सच अ मैन। There was a one man who changed his line of thinking। कि हम जनरली किसी को भी बिना शूज चप्पल के देखते हैं तो ये सारे पॉइंट्स हमारे माइंड में आते हैं, बट ही वॉज सच अ मैन जिसने ये पूरी थिंकिंग ही चेंज कर दी कि शूज ना पहनने से कोई स्लेव या पुअर नहीं होता है। ओके, पूरी थिंकिंग चेंज करने वाला वो पर्सन कौन था? He was Major Dhyan Chand Singh। Who was Major Dhyan Chand Singh? He was the man who helped India। इंडिया को जिसने हेल्प किया to win 3 Olympic gold medals in hockey। कितने? 3 Olympic gold medals in the hockey। Students, we all know hockey is the game, national game of which country? India, है ना? So the major of this particular game was Major Dhyan Chand। Okay, here you can see the statue of Dhyan Chand। This statue is located at the Jhansi। You can see the Major Dhyan Chand statue। Okay, let's study about the Dhyan Chand, how he changed this thinking and where he was born, what he did and how he helped the India to win the 3 Olympic gold medals in the hockey। Okay, chalo, let's study about the Dhyan Chand। Dhyan Chand was born on 29th August 1905। ध्यानचंद was कब born हुए थे? 29 अगस्त को। स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि 29 अगस्त जिससे कि 2 अक्टूबर है गांधी जयंती, ठीक है, वैसे 29 अगस्त को ऐसा कौन सा डे है जो हम आज भी सेलिब्रेट करते हैं? 29 अगस्त। फाइंड इट एंड मुझे लाइव लेक्चर में इसका आंसर चाहिए। ओके, चलो। ध्यानचंद was born on 29th August 1905 in Allahabad। His father Sameshwar Singh worked in the British Indian Army and played hockey for them। ओके, उसके फादर का नेम क्या था? सामेश्वर सिंह था। वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में काम करते थे और क्या करते थे? हॉकी खेलते थे उनके साथ, ठीक है। Army life of Singh family went frequently transferred till they settled in झांसी, उत्तर प्रदेश। जनरली आर्मी मैन होता है तो उसको एक प्लेस से दूसरा प्लेस जाना कंटिन्यूसली, उसका या तो उसकी जॉब शिफ्ट होती रहती है, ठीक है, तो उसकी फैमिली को कंटिन्यूसली शिफ्टिंग ट्रांसफ़र की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी अनटिल फाइनली वो कहाँ सेटल्ड हुए? झांसी में, जो कि कहाँ है? झांसी कौन से स्टेट में है? उत्तर प्रदेश में। तब ध्यानचंद छोटे चाइल्ड थे, ठीक है। एज ए चाइल्ड ही वॉज इंटरेस्टेड इन रेसलिंग, नॉट इन हॉकी। उनका इंटरेस्ट किस में था? रेसलिंग में था, हॉकी में नहीं था। ऑन हिज 17th बर्थडे ही एनलिस्टेड इन द आर्मी एज ए सिपॉय। सिपॉय मीन्स अ सोल्जर दैट वर्क्स फॉर द ब्रिटिश आर्मी, ठीक है। Here on this 17th birthday वो select हुए आर्मी में as a सिपॉय। For next 4 years, after 4 years he played, and during that 4 years he played for the army in hockey tournaments। उनको हॉकी में इंटरेस्ट नहीं था, but then also he played for the army के लिए हॉकी टूर्नामेंट खेले and regimental games। Regimental games students means a group of army is playing our game and this all players are headed by the one person that is called colonel, ठीक है, कर्नल बोलते हैं। You can see over here the meanings are given to you। Regimental means relating to a regiment, which means a large group of soldiers, clear? Now next is he was eventually selected for the Indian Army।
4 years उसने हॉकी खेला, ठीक है। देन ही इवेंचुअली सिलेक्टेड फॉर द इंडियन आर्मी विच हेडेड फॉर न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में जो हॉकी टीम्स का जो हुआ सिलेक्शन, उसमें ही वॉज सिलेक्टेड। द टीम रिटर्न्ड आफ्टर विनिंग मोस्ट ऑफ द मैचेस। बहुत सारी मैचेस जीतने के बाद टीम रिटर्न आई। एंड ध्यानचंद वॉज अल्टीमेटली सिलेक्टेड फॉर द फर्स्ट इंडियन हॉकी टीम। जो टीम सिलेक्ट हुई इंडियन हॉकी टीम, उसमें ध्यानचंद वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी सिलेक्टेड टू complete in the Olympics. Okay, Indian hockey team formed to complete in the Olympics in 1928 in Amsterdam. Amsterdam में जो Olympics held हुआ था, he was the first Indian to be selected. And in the finals, जब finals आए, all the good players of the team had fallen sick. जनरली हमारी एग्ज़ाम भी होती है, हम कितना भी प्रिपेयर कर लें, कुछ ना कुछ तो ऐसा होता ही है कि हमारी हेल्थ जनरली बहुत ज़्यादा वर्कआउट करने से या बहुत ज़्यादा टेंशन लेने से, आपको पता है एग्ज़ाम में भी हम लोग एकदम टेंशन लेते हैं तो वी फॉल सिक। सिमिलरली हैपेंड ओवर हियर। फाइनल मैच होने वाली थी, उससे थोड़े ही दिन पहले सारे प्लेयर्स बीमार पड़ गए। Even Dhyanchand was not well, yet he played and scoring 2 out of 3 goals, beating the host to win the India's first Olympic gold medal. Okay, वो इतनी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, then also he played and he wins. He wins for the first time India's first Olympic gold medal. Who won the India's first Olympic gold medal? Dhyanchand. Okay, he was the hero, scoring the 14 goals in the 5 matches में उसने कितने goals किए? 14 goals किए। He is considered today also, he is considered as a hero of hockey. Okay, it was at this Olympic that the world discovered him. ये ओलंपिक में सारे वर्ल्ड को पता चल गया कि यहाँ we have such a person, as he was responsible for India bagging its first Olympic gold medal in the hockey. A newspaper reported his feat as a magic. न्यूज़पेपर ने क्या बोला? उसके जो feet, उसके पैर हैं वो कैसा, उसमें एक मैजिक है अलग. It is said that the Dutch authorities were so suspicious of his hockey stick that they broke it open to see if it contained magnets. क्या है वो हॉकी इस वे में प्ले करते थे कि जो उनके साथ सामने खेलने वाली डच अथॉरिटीज थी, डच की एक टीम थी, उनको ऐसा था कि उनकी हॉकी स्टिक में एक मैग्नेट है, तक उनकी हॉकी स्टिक से बॉल दूर रह ही नहीं पा रहा है, तो ही इज प्लेइंग सम ट्रिक विथ अस एंड ही इज विनिंग. सो उनको तो इतना डाउट था ध्यानचंद पे कि उन्होंने उनकी हॉकी स्टिक तोड़ दी. क्यों? उनको ये डाउट था कि उनकी हॉकी स्टिक में मैग्नेट है. ओके, ओवर द नेक्स्ट 11 years Dhyanchand and India went on to dominate means control the sport as he played matches in India and abroad. ध्यानचंद इतना फेमस प्लेयर हो गए कि वो पूरे स्पोर्ट्स पे कंट्रोल उनका आ गया कि वो इंडिया और एब्रोड दोनों जगह वो गेम्स खेलते थे. ठीक है. द कंट्री वॉन द सेकेंड गोल्ड मेडल एट द ओलंपिक गेम्स इन लॉस एंजल इन 1932. ओके, फर्स्ट ओलंपिक कप जो हुआ था उन्होंने जीता था इन 1928 एम्स्टरडेम में जो मैच हुई थी वहाँ पे उन्होंने फर्स्ट गोल्ड मेडल ओलंपिक का जीता था. सेकंड गोल्ड मेडल लॉस एंजल्स में जीता इन 1932 में. इन 1934 ही वॉज सिलेक्टेड टू बी द कैप्टन ऑफ द इंडियन हॉकी टीम. वो कब सिलेक्ट हुए थे इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन? इन 1934. देन कम द 1936 द ओलंपिक्स इन द बर्लिन which Dhyanchand was at the peak of his power. एकदम पीक मीन्स एट द टॉप मोस्ट हाई लेवल थी. कब उसने अचीव किया था? ध्यानचंद जी ने अचीव किया था पीक पावर
ठीक है, बर्लिन में। ऑन द पाथ टू द फाइनल्स एट बर्लिन ओलंपिक्स द इंडियन टीम लोस्ट 1-4 टू जर्मनी इन सेमीफाइनल। फाइनल्स में हमारी इंडिया टीम हारी, बट इन द सेमीफाइनल्स इंडिया क्रश्ड फ्रांस 10-0। फ्रांस को एक भी पॉइंट नहीं बनाने दिया। ओके, इन द फाइनल इंडिया प्लेड अगेंस्ट जर्मनी। फाइनल्स में क्या हुआ, इंडिया और जर्मनी आमने सामने आ गए और गेम खेली। द प्रीवियस लॉस टू जर्मनी इंक्रीज द प्रेशर टू परफॉर्म। ठीक है, थ्रू द फर्स्ट हाफ ऑफ द गेम इंडिया कुड नॉट स्कोर। गेम्स 2 पार्ट्स में खेली गई। फर्स्ट पार्ट में इंडिया ने एक भी पॉइंट नहीं स्कोर किया। ड्यूरिंग द सेकंड हाफ ध्यानचंद discarded, remove his spicked. Discarded means removed his spicked. Then what you can see here, the image of Olympic Games he was playing in 1936 at Berlin. फ्रांस के अगेंस्ट वो खेल रहे थे। ठीक है, क्या किया उन्होंने, ये जो बर्लिन में उनकी गेम्स चली, फर्स्ट हाफ में वो एक भी पॉइंट स्कोर नहीं कर पाए। सेकेंड हाफ में क्या किया, ध्यानचंद ने डिस्कार्ड मीन्स रिमूव किया। क्या रिमूव किया ध्यानचंद जी ने, यस, ही रिमूव्ड हिज सॉक्स, शूज एंड प्लेड बैरफुटेड। बिना शूज, बिना सैंडल्स, बिना सॉक्स के वो खेले। He scored 3 goals out of 8 and India defeated Germany, won it. Okay, thus at the time when the German team was well-heeled means जर्मन की जो टीम थी उसके पास सारे इक्विपमेंट्स विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। उसके शूज़ अच्छे थे, उनके ड्रेसिंग सेंस, जो हमारे पास इक्विपमेंट नहीं थे वो सारे उनके पास थे। दो उनको किसने हराया, जिसने एक शू तक पैर में नहीं पहना था। बैरफुटेड ही प्लेड द ओलंपिक गेम एंड ही वाज द ध्यानचंद। ओके, तो एक ऐसी टीम वेल हील्ड जिसके पास सारे इक्विपमेंट्स हैं, पैसे हैं, और दूसरे साइड एक बैरफुटेड हॉकी प्लेयर थे इंडिया में से, उन्होंने उनको धूल चटा दी, बोलते हैं ना, हरवा दिया। ठीक है, ही वॉज अ लेजेंड। ठीक है ना, एंड देन लेजेंड हैज इट दैट हिटलर ऑफर्ड हिम अ जर्मन सिटीजनशिप एंड हायर आर्मी पोस्ट। अभी जर्मनी में उनका इतना नेम हुआ कि उन्होंने अपना नेम इतना सक्सेस अचीव किया। तब आपने हिटलर का नाम सुना होगा, ही वॉज द हेड ऑफ द आर्मी, हिटलर। उन्होंने उनको जर्मन की सिटीजनशिप प्रोवाइड की कि आप इंडिया छोड़ के जर्मनी में आ जाओ, मैं आपको आर्मी में एक अच्छी पोस्ट दूंगा। ठीक है, बट वो तो एक अच्छे ट्रस्टवर्दी, ट्रूथफुल, ऑनेस्ट इंडियन सिटीजन थे, तो ही डिनाइड दिस ऑफर। ध्यानचंद ग्रेसफुली डिक्लाइंड इट। इट वॉज हिज थर्ड एंड लास्ट ओलंपिक। ओके, ये उनकी थर्ड और लास्ट ओलंपिक थी। एट द एज ऑफ 31 ही हैड डिसाइडेड टू रिटायर। 31 ईयर की एज हुए और उन्होंने डिसाइड किया कि आई विल नॉट प्ले, आई विल रिटायर नाउ। ही कंटिन्यूड टू प्ले हॉकी टिल द लेट 1940s एंड रिटायर्ड एज अ मेजर इन 1956 में वो रिटायर्ड हुए। दिस इज एन इंटरेस्टिंग anecdote pertaining to his name. Anecdote means this is an interesting story about Dhyanchand. Okay, Dhyan Singh used to practice at night in the light of the moon since floodlights were not invented yet. अभी now interesting क्या है ध्यानचंद के बारे में। नाउ स्टूडेंट्स, आपके पास सारी फैसिलिटीज़ है। योर पेरेंट्स आर प्रोवाइडिंग मोबाइल, इंटरनेट क्वालिटीज़, आप सब आपके पेरेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, बट इन रिटर्न व्हाट दे वांट दैट यू लर्न। आप अच्छे से लर्न करो, प्रिपेयर करो, बट देन ऑल्सो इज इट पॉसिबल, आप करते हो। और दूसरी साइड है द मोस्ट
legendary player of the hockey, that is ध्यानचंद. उनके पास कोई फैसिलिटी नहीं थी, ना ही वो इतने रिच थे. उस टाइम पे उन्होंने प्रैक्टिस की थी हॉकी की. तभी फ्लड लाइट्स मीन्स सारे स्टेडियम, पूरे ग्राउंड को, जो नाइट में पूरे ग्राउंड में हम लाइटनिंग करते हैं ना, ताकि ग्राउंड का ईच एंड एवरी कोना हमें दिखे, तब वो फ्लड लाइट्स अवेलेबल इन्वेंट ही नहीं हुई थी. वो मून की लाइट में जनरली आप एक दूसरे को देख भी कम पाओ, इतना मून की लाइट में वो नाइट में प्रैक्टिस करते थे. आप यहाँ से सोच सकते हो वो कितना डेडिकेटेड थे अपने हॉकी की उसमें. ठीक है. Hence, his fellow players gave him the nickname चंद. ठीक है. उनके जो फॉलो करते थे सारे प्लेयर्स, उन्होंने उसको क्या नाम निकनेम दिया? चांद. उनका रियल नेम था ध्यान सिंह, बट उसका ये जो चांद है वो उसको निकनेम सारे प्लेयर्स ने प्रोवाइड किया है. चांद का मीनिंग होता है मून. वो नाइट में प्रैक्टिस करते थे, इसीलिए उसको बोला गया है चांद. ठीक है. दैट इज हाउ ही केम टू नोन एज ध्यान चंद. He passed away in 1979. His birthday is on 29 August. उनका बर्थडे 29 अगस्त को है, इसीलिए हम उनकी याद में ये 29 अगस्त वी सेलिब्रेटेड एज द नेशनल स्पोर्ट्स डे. ओके, ये मेरे क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर 29 अगस्त को कौन सा डे सेलिब्रेट होता है? नेशनल स्पोर्ट्स डे. ओके. So students, I hope now the story of this chapter, the story of the Dhyanchand hockey player is clear to you. So now write these meanings once in your fairbook and twice in your homework book. Okay? Then try to practice, try to solve the exercise of this chapter given in your textbook. Okay students, so I am ending our lecture over here. Okay?